ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, KOH हमको ब्रेक होकर देगा K पॉजिटिव और हाइड्रोक्साइड नेगेटिव। ये जो हाइड्रोक्साइड है दिस इज ए न्यूक्लियोफाइल और हमारे रिएक्टेंट में दो क्लोरीन है एंड बोथ दीज क्लोरीन्स आर गुड लिविंग ग्रुप्स। तो होगा क्या, ये दोनों क्लोरीन दो हाइड्रोक्साइड से सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे। तो इसमें हमारे पास एक इंटरमीडिएट बनेगा, इसमें एक ही कार्बन के ऊपर दो OH ग्रुप रहेंगे। ये हो गया हमारा इंटरमीडिएट और इसके बाद इसमें से वाटर लॉस हो जाएगा, यहाँ से एक से H जाएगा एक से OH और हमारे पास एक एल्डिहाइड मॉलिक्यूल बन जाएगा। सो दैट मीन्स correct option is A in this. Moving on to the second, which of the following is not chiral? तो इसमें हमने सिंपली इनके स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिए। स्ट्रक्चर में हमने देखा कि 3 मिथाइल हेक्सेन, इसके पास एक कायरल कार्बन है। कायरल कार्बन वो जिसके साथ 4 अलग अलग ग्रुप्स लगे हुए हैं। उसके बाद 2,3 डाइहाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, उसमें भी एक कायरल कार्बन है। सिमिलरली डी में ब्यूटेन 2-ओल, इसमें भी जो सेकंड कार्बन है जिसपे OH ग्रुप लगा हुआ है वो भी कायरल है, राइट। लेकिन सी में 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन, इसमें कोई भी कार्बन ऐसी नहीं है जिसमें 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे हो। सो दैट मीन्स इसमें कोई कायरल कार्बन नहीं है, दैट मीन्स ये कायरल नहीं है। तो इसमें हमारे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कायरल, इसमें सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट 2,3 ब्रोमोब्यूटेन इज नॉट कायरल। मूविंग ऑन टू द थर्ड। So next question is, Furan 12 is commonly used as an insecticide, a refrigerant, a solvent or a fire extinguisher. Correct answer is a refrigerant. Furan 12 is a chlorofluorocarbon, right? So its formula is CF2Cl2. That means it is derivative of methane and its structure is a tetrahedral structure in which 2 are fluorines and 2 carbons are attached. This is Furan 12. So option B is the correct option. Moving on to the next question. For the given alkyl group, the boiling points of alkyl halides follow the order. So this question comes up many times, so it is a general question. In this question option A is correct option, that alkyl iodides, they have a higher boiling points as compared to bromides and compared to chlorides. The reason is simple, due to higher intermolecular attractions. Moving on to the next question. Chlorobenzene can be obtained from benzene diazonium chloride by, the correct option is among the 4 is Gattermann reaction, right? So what is this reaction? This is our benzene diazonium chloride. It is simply heated with a metal salt like copper chloride and it will give you chlorobenzene. So this reaction is known as Gattermann reaction. So option A is the correct option. So you can see that in this nitrogen N2 is a very good leaving group.
that means it can be easily replaced. Moving on to the sixth question, the major product acts in the following reaction: CH3CH, that is propene. So addition of HI in case of propene occurs according to Marconi-Cove's rule, right? That means hydrogen is added here and iodide is added here. So what we get is CH3 CHI CH3, right? That means option A is our correct option. A shortcut for this can be that you can write a stable carbocation from this. तो इसमें क्या रहेगा कि स्टेबल कार्बोकेटाइन बना लो. तो स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगी सेकेंडरी. तो सेकेंडरी स्टेबल कार्बोकेटाइन बन गई, उसमें आई नेगेटिव कहाँ लगेगा? नंबर 2 कार्बन के ऊपर. नेक्स्ट, IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स. इट शुड बी वेरी इजी. तो इसमें नंबरिंग हम लोग कर लेते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4. That means this compound is but2ene. So we have a bromo at number 1. So the compound's name is 1-bromo-butene. So option A is our correct option. So ये तो बहुत easy question रहा. So next question, the major product of hydrolysis with aqueous KOH is. Let's see how this reaction will work out. Hydrolysis means let's draw the structure of the reactant. तो इसमें Cl जो है लीविंग ग्रुप है तो वो बाहर निकल जाएगा. तो इसके बाद हमारे पास एक कार्बोकेटाइन बन जाएगी. सो कार्बोकेटाइन जब बन गई तो हाइड्रोलिसिस में KOH डाला हुआ था एक्वस. तो इस एक्वस KOH में हमारे पास हाइड्रोक्साइड यहाँ पे आके इस पे ऊपर लग जाएगा. तो ये हमारा प्रोडक्ट रहा. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. So this reaction can occur via SN1 mechanism because it is a tertiary carbocation. Moving on to the next question. ये हमारी रिएक्शन है, 2 एल्काइल हैलाइड्स एलिमेंटल सोडियम की प्रेजेंस में अगर रिएक्ट करके एक दूसरे के साथ कंबाइन कर जाएंगे तो ये रिएक्शन है वर्ट्स रिएक्शन. इसमें ड्राई ईथर रहेगा सॉल्वेंट. ड्राई ईथर का मीनिंग है विदाउट वाटर, विदाउट ट्रेस ऑफ वाटर. तो अगर इसमें वाटर रहेगा तो इस रिएक्शन में सोडियम, एलिमेंटल सोडियम है तो उसकी वजह से ये रिएक्शन एक्सप्लोसिव हो जाएगी. तो इसी कारण इसमें ड्राई ईथर यूज होता है. तो इसमें हमारे पास एल्कीन फॉर्म हो जाता है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड Z इन द रिएक्शन सीक्वेंस. लेट्स सी. तो इथाइल आयोडाइड हमारे पास है, इसमें अल्कोहलिक KOH हमने डाला. तो अल्कोहलिक KOH क्या है? इट इज ए बेस. बेस प्रमोट करेगा एलिमिनेशन रिएक्शन. तो बेस से क्या होगा? एलिमिनेशन रिएक्शन होगा. तो एलिमिनेशन रिएक्शन कैसे होगा? एक हाइड्रोक्साइड, तो इस रिएक्शन का नाम है E2 एलिमिनेशन. हमारे पास बन जाएगी एक एल्कीन, इथीन. तो X हमारा हो गया इथीन.
इसके बाद क्या रहा, Br2। Br2 में ऐसे रिएक्शन होगी कि Br ऐड हो जाएगा हमारे पास CH2Br, इसके बाद रहेगा CH2 पॉजिटिव, उस पॉजिटिव के ऊपर जो हमारा दूसरा नेगेटिव Br था वो ऐड हो जाएगा। ये है एडिशन टू एल्कीन, एडिशन टू एल्कीन। तो अब हमारे पास बन गया CH2Br, दोनों CH2 के ऊपर Br लग गया, और ये जो दोनों Br हैं, Br इज ए गुड लिविंग ग्रुप। तो अगर Br गुड लिविंग है, इसमें हमने डाल दिया KCN, KCN जो हमारे पास रिलीज होकर देगा K पॉजिटिव और साइनाइड नेगेटिव, और साइनाइड नेगेटिव जो नाइट्राइल आयन है ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। सो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, लिविंग ग्रुप को रिप्लेस करेगा। तो इसमें ये दोनों Br CN से रिप्लेस हो जाएंगे, हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा ये। तो इसमें ये भी जो मैच करेगा ये हमारी करेक्ट ऑप्शन रहेगी, ऑप्शन बी, नॉट सी। हमारी करेक्ट ऑप्शन रहेगी ऑप्शन बी। सो इसमें भी कौन सी रिएक्शन हुई, SN2 रिएक्शन हुई। इसमें एक साइनाइड इस तरह से Br को रिप्लेस करेगा, दूसरा भी इसको इसी तरह से रिप्लेस कर देगा। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, which of the following is most reactive towards nucleophilic substitution reaction। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पूछा गया है इसमें कि कौन सा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। सो रिएक्टिव वो रहेगा जो सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगा, सिंपल स्टेबल कार्बोकेटाइन। तो इसके लिए हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। Cl, इसमें हम दूसरा फंडा है, लीविंग ग्रुप इजीली लीव कर जाए, लीविंग ग्रुप लीव्स इजीली, तभी कार्बोकेटाइन बनेगी ना। तो हम ये हो गया हमारा A, दैट इज क्लोरोबेंजीन। ये हो गया हमारा B, CHCl डबल बॉन्ड Cl, और इसी के साथ हमारा हो गया Cl CH2 CH2Cl, तो ये हमारा C, और D में देखो CH डबल बॉन्ड, इस तरह से इसको लिख लेते हैं। तो अगर हम लोग देखें इसमें भी जो लीविंग ग्रुप है क्लोरीन, वो अटैच है बेंजीन रिंग के साथ। इसमें भी जो लीविंग ग्रुप अटैच है वो डबल बॉन्ड कार्बन के साथ है। इसमें भी जो लिविंग ग्रुप अटैच है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ है। दैट मीन्स ये तीनों हैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो जो sp2 कार्बन है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, लेकिन अगर हम लोग C में देखें तो C में ये जो है कार्बन क्लोरीन बॉन्ड। सो क्वेश्चन नंबर 13, द रिएजेंट्स फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन। सो इसमें हमारे पास गिवन है 1,2-डाइब्रोमो इथेन, इसमें से सीधी हमारे पास बन रही है एसिटाइलिन। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें सिंगल बॉन्ड से हम लोग ट्रिपल बॉन्ड की तरफ जा रहे हैं, इसमें होगी हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एलिमिनेशन के लिए क्या चाहिए, एलिमिनेशन के लिए हमें चाहिए बेस, और जो बेस हो स्ट्रॉन्ग, राइट। तो इसमें क्या रहेगा कि जिंक और एसीटोन मिथेनॉल तो पहले ही निकल गया। उसके बाद हमारे पास अल्कोहलिक KOH आ गया। अल्कोहलिक KOH स्ट्रॉन्ग बेस है, लेकिन इस रिएक्शन में ये इफेक्टिव नहीं रहेगा। वो कैसे नहीं रहेगा अभी हम लोग देखते हैं। जब हमारे पास एक्वस और अल्कोहलिक KOH की बात हो तो इसमें अल्कोहलिक KOH इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस।
सो इसमें एक ही लॉजिकल ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन डी। ये कैसे काम करेगी? तो पहले हम लोग यूज करेंगे अल्कोहलिक KOH। तो अल्कोहलिक KOH से क्या होगा कि अल्कोहलिक KOH हमारे पास RO नेगेटिव देगा। RO नेगेटिव कैसे देगा कि KOH प्लस ROH ये जब बनेंगे तो हमारे पास एल्को ऑक्साइड आयन बनेगा। सो एल्को ऑक्साइड जो है दैट इज स्ट्रॉन्ग बेस। ये एल्को ऑक्साइड आयन एलिमिनेशन रिएक्शन करेगा, दोनों Br में से कोई भी बाहर निकल जाएगा। तो हमारे पास बच गया Br, उसके बाद बचा CH डबल बॉन्ड CH2। तो अभी हम लोग हमारे फाइनल प्रोडक्ट पे नहीं पहुंचे। फाइनल प्रोडक्ट कब बनेगा? जब हम लोग NaNH2 यूज करेंगे। ये रिलीज होकर आपको देगा NH2 नेगेटिव। सो NH2 नेगेटिव इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि डबल बॉन्ड के साथ लगी हाइड्रोजन को भी रिमूव कर देगा। तो जैसे ही ये रिमूव करेगा हमारे पास Br इधर से भी एलिमिनेट हो जाएगी। तो एक एलिमिनेशन हो गई, ये सेकंड। तो इसमें हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन गया एसिटाइलिन। तो एक तरह से ये डबल एलिमिनेशन होगी। तो एक्कोस काम नहीं करेगा क्योंकि एक्को स्ट्रॉन्ग नहीं देगा। अल्कोहलिक KOH काम करेगा, उसके बाद NaNH2 यूज होगा। NaNH2 क्यों यूज हुआ? क्योंकि वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो डबल बॉन्ड के साथ लगे प्रोटॉन को भी रिमूव कर सकता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। among the following which one is chlorine containing insecticide? इसमें हम लोग क्लियर है कि ये DDT ही है। फ्रेऑन तो हम लोग करके आए हैं पिछले क्वेश्चंस में, ये रेफ्रिजरेंट है। आइडोफॉर्म एक रिएजेंट हो गया। फॉस्फीन भी एक गैस है जो केमिकल रिएक्शन में काम आती है हमारे। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रिएजेंट्स A and B इन द फॉलोइंग रिएक्शन। सो ऐसे क्वेश्चंस में पहले हम लोग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में नोटिस करते हैं क्या हुआ। यहाँ पे सिंगल से डबल बॉन्ड बना, दैट मीन्स एलिमिनेशन हुई है। जब भी रिएक्शन डबल बॉन्ड पे फिनिश हो दैट मीन्स एलिमिनेशन रिएक्शन हो रही। तो एलिमिनेशन कब होगी? एलिमिनेशन के लिए आपको चाहिए लीविंग ग्रुप, राइट। तो ये जो हमारा कंपाउंड है दैट इज इथाइल बेंजीन, इसमें तो कोई लीविंग ग्रुप नहीं है। सो दैट मीन्स पहले हमें एक लीविंग ग्रुप लगाना पड़ेगा इसमें। और लीविंग ग्रुप के लिए आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, SOCl2, Cl2H न्यू, SOCl2, SOCl। तो ये चारों ऑप्शन आपके पास आपको लीविंग ग्रुप ऐड कर देंगे। लेकिन लीविंग ग्रुप अब हमें चाहिए कहाँ पे? हमें इस कार्बन के ऊपर चाहिए या हमें इस कार्बन के ऊपर। तो इसमें से भी बेटर यही है। तो ये SOCl2 कर देगा, SO2Cl2। तो इसमें हमारे पास एक प्रोडक्ट बन गया CH Cl और CH3। इसके बाद हमने यूज किया अल्कोहलिक KOH। अगेन अल्कोहलिक KOH क्या देगा हमारे पास? वो देगा RO नेगेटिव। RO नेगेटिव क्या है? एक स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा? हाइड्रोजन को रिमूव करेगा। तो हमने CH3 को इस तरह से लिख लिया, ये गया स्ट्रॉन्ग बेस और इसको रिमूव करेगा। तो इसको रिमूव कर गया तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन गया। सो दैट मीन्स इनमें से हमारी करेक्ट ऑप्शन है डी ऑप्शन। SOCl2 क्लोरीनेशन नहीं कर पाएगा,
Cl2H न्यू से अगर हम क्लोरीनेशन करने की कोशिश करेंगे रिएजेंट बी से, तो क्या होगा, हमारे पास एक मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बन जाएगा बच्चों। तो वो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट क्या रहेगा, तो अगर रिएक्शन कंट्रोल नहीं होंगी तो ये सारे के सारे हाइड्रोजन ही रिप्लेस हो जाएंगे एक एक करके। तो अगर ये दोनों रिप्लेस हो गए तो एलिमिनेशन रिएक्शन कहाँ से होगी, राइट। तो एक ही हमारे लॉजिकल आंसर है, दैट इज ऑप्शन डी। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, मेजर प्रोडक्ट इन दिस रिएक्शन। अगेन ये देखो Br2 और H न्यू है हमारे पास, तो ये होनी है ब्रोमिनेशन, और ब्रोमिनेशन होगी रेडिकल मैकेनिज्म से। सो दैट मीन्स फ्री रेडिकल्स बनेंगे। अगर फ्री रेडिकल्स बनेंगे, सिंपली हम लोगों ने क्या करना है, ये जो सारी ऑप्शंस हैं इनमें से Br को रिमूव कर दो। तो अगर हमने Br को रिमूव कर दिया तो ये बचा CH3, और जहां से Br रिमूव हुआ है वहां पे हमें रेडिकल लगाना है। तो हमने ऑप्शन बी से भी निकाल दिया, रेडिकल लग गया। ऑप्शन सी में से भी निकालो, तो ऑप्शन सी में से रेडिकल बन गया, और ऑप्शन डी में से रेडिकल बन गया। अब सिंपली ये देखना है इन चारों में से कौन सा स्टेबल है। सो ये है टर्शरी, ये है प्राइमरी, ये है सेकेंडरी, और ये भी है सेकेंडरी। और रेडिकल्स की स्टेबिलिटी क्या है, टर्शरी सबसे स्टेबल, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी। दैट मीन्स स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल्स। तो सबसे स्टेबल कौन सा है, ये वाला रेडिकल। सो दैट मीन्स रिएक्शन कहाँ से प्रोसीड करेगी, थ्रू द मोस्ट स्टेबल रेडिकल से प्रोसीड करेगी। सो दैट मीन्स इसमें हमारी जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन ए। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव इथेनॉल विद एक्वस KOH। तो इसमें हमारे पास चार ऑप्शन है, क्लोरो एसिटिक एसिड, 1,2-डाइक्लोरो इथेन, 1,1-डाइक्लोरो इथेन, और इथाइल क्लोराइड। तो इनमें चारों का स्ट्रक्चर बना लो। क्लोरो एसिटिक एसिड ClCH2 COOH, ये बन गया हमारे पास 1,2-डाइक्लोरो इथेन। सो Cl CH2 CH2 CH3 CH3 नहीं Cl, और 1,1-डाइक्लोरोइथेन CCl Cl H CH3, 1,1-डाइक्लोरोइथेन, और लास्ट में हमारे पास हो गया इथाइल क्लोराइड। और साथ ही हमने हमारा फाइनल प्रोडक्ट बना रखा। तो इसमें ये ध्यान दो, अगर C डबल बॉन्ड O बनेगा, दैट मीन्स वो तभी बनेगा जब हमारे पास एक डबल एलिमिनेशन होगी। सो डबल एलिमिनेशन के लिए हमें चाहिए दो लीविंग ग्रुप्स, और दोनों लीविंग ग्रुप चाहिए हमें सेम कार्बन पे। तो अगर ये सेम कार्बन पे इसमें सिर्फ एक ऑप्शन के पास है, वो है हमारे इस कंपाउंड के पास, दैट मीन्स दैट इज अवर ऑप्शन सी। सो ओनली करेक्ट ऑप्शन इन दिस इज 1,1-डाइक्लोरोइथेन। तो इसमें आप क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्टिंग से देख सकते हो, उसी क्वेश्चन में हमने इसको प्रॉपरली पूरी रिएक्शन डिस्कस की हुई है। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following are arranged in decreasing order of dipole moment।
तो इसमें क्या रहता है कि सिंपली हमें डाइपोल मूवमेंट का डिक्रीजिंग ऑर्डर निकालना है। तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो है FON, राइट। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा, उसके बाद ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन के बाद हैलोजन्स में क्लोरीन और ब्रोमीन का नंबर आता है। तो कॉमन सेंस ये रहनी चाहिए थी कि CH3F सबसे ज़्यादा पोलर रहता, उसके बाद CH3Cl और उसके बाद रहता CH3Br। ये हमारी एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन हो गया। लेकिन इसमें जो एक्चुअल क्वेश्चन है कि Cl और F की पोजीशन शिफ्ट है जो एक्सपेरिमेंटली बच्चों फाइंड है। तो इसमें जो हम लोग गलती करेंगे तो इससे बचने के लिए सिंपली है कि मिथाइल क्लोराइड की एक्चुअल में डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है, किससे? मिथाइल फ्लोराइड से। इसमें क्लोरीन और फ्लोरीन के साइज का डिफरेंस भी आ जाएगा और ब्रोमीन की सबसे कम है। तो दैट मीन्स इसमें ऑप्शन हमारी जो है बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें बहुत इजीली हम लोग मिस्टेक कर सकते हैं कि ए ऑप्शन को चूज कर रहे हैं, राइट। तो इसी एक एक्सेप्शन में आल्दो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन मिथाइल फ्लोराइड के मुकाबले मिथाइल क्लोराइड की डाइपोल मोमेंट ज़्यादा रहती है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो अगेन हाइड्रोलिसिस जो बच्चों रहती है, हाइड्रोलिसिस अकर्स थ्रू SN1। तो SN1 दैट मीन्स हमें चाहिए स्टेबल कार्बोकेटाइन। तो कुछ नहीं करना, सारे स्ट्रक्चर्स को कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट कर लो। कैसे करेंगे? हर एक Br को रिमूव कर दो। तो ये पॉजिटिव चार्ज आ गया हमारी बेंजीन रिंग के ऊपर। सेकंड को हमने कन्वर्ट किया तो पॉजिटिव चार्ज आ गया साइक्लोहेक्सिन के ऊपर। थर्ड को हमने कन्वर्ट किया C को, पॉजिटिव चार्ज अगेन साइक्लोहेक्सिन के ऊपर है, लेकिन डबल बॉन्ड के साथ ये कंजुगेशन में रहेगा। और D को हमने किया तो Br रिमूव करके हमारे पास ये बन गया। तो इसमें हमारी ये कार्बोकेटाइन है टर्शरी, ये हमारी एलिलिक है, आल्दो ये रहेगी सेकेंडरी ही। ये हमारी है हो गई सेकेंडरी, और ये बेंजीन पे पॉजिटिव चार्ज, ये सबसे कम स्टेबल है, ये तो बहुत मुश्किल से बनेगा। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है? टर्शरी। तो ऑप्शन डी सबसे पहले होनी चाहिए। तो अगर ऑप्शन डी हमारे पास पहले है तो एक ही ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। डी के बाद सी स्टेबल, सी के बाद बी स्टेबल और ए सबसे कम स्टेबल। दैट मीन्स ऑप्शन डी इज अवर करेक्ट आंसर, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, addition of HBr to propene in the absence of peroxides involves in the first addition of H radical, Br radical, H positive या Br नेगेटिव। तो ये बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन रहेगा। इसमें आपको सिंपल ये जानना है कि HBr हमको ब्रेक होकर क्या देगा? H पॉजिटिव और Br नेगेटिव। तो जो H पॉजिटिव रहेगा वो अट्रैक्ट हो जाएगा सबसे पहले। तो अगर वो अट्रैक्ट हो गया हमारे पाई इलेक्ट्रॉन्स की तरफ, तो हमारे पास क्या रह गया? H। और दूसरी कार्बन पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज वाली कार्बन को अटैक करेगा Br, तो उसमें हमारा एक फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। लेकिन जो हमारा क्वेश्चन था फर्स्ट स्टेप, दैट इज फर्स्ट स्टेप क्या है? H पॉजिटिव के एडिशन। दैट मीन्स ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट आंसर।
बी आर की एडिशन होती है, लेकिन बी आर की एडिशन इट अकर्स इन सेकेंड स्टेप. सो मूविंग फर्दर, question number 21, the major product in the following reaction. So again, look at this methoxide, it is a base. और अभी तक जो हम करते हैं, बेस क्या प्रमोट करेगा? बेस विल प्रमोट एलिमिनेशन. सो दैट मीन्स ये मेजर प्रोडक्ट पूछा गया. प्रोडक्ट से ज़्यादा बनते हैं, लेकिन मेजर प्रोडक्ट कौन सा है? अगर बेस प्रेजेंट होगा तो एलिमिनेशन मेजर प्रोडक्ट बनेगा. तो एलिमिनेशन कब बनेगा? एलिमिनेशन से एल्काइल हैलाइड्स से बनते हैं एल्कीन्स, सी डबल बॉन्ड सी, राइट. और सी डबल बॉन्ड सी की हमें सिर्फ एक ही ऑप्शन गिवन है, दैट इज ऑप्शन बी. तो इसका जो मेजर प्रोडक्ट रहेगा दैट इज ऑप्शन बी, राइट, 2-methyl propene. मूविंग फर्दर, क्वेश्चन नंबर 22, A and B in the following reaction. अगेन फोकस करना है हमें कहाँ पे? एरो के ऊपर जो रिएक्शन कंडीशंस गिवन है. तो ये है हमारा बेस, तो बेस देगा एलिमिनेशन, राइट. तो लेट्स ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द रिएक्टेंट. CCH3 CH3 CH3 CBr. तो इसमें अगर एलिमिनेशन होगी तो यहाँ से एक हाइड्रोजन जाएगा और इधर से Br जाएगा. तो हमारे पास एक एल्कीन बनेगी जो है 2-methyl propene. तो हमारे पास B हो गया मेजर प्रोडक्ट. कहाँ से पता लगा? बेस से. और यहाँ पे क्या रहा है? सिर्फ इथेनॉल गिवन है. तो यहाँ पे होगी हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. क्या होगा यहाँ से? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. सो सब्स्टिट्यूशन में क्या रहेगा? पहले Br जाएगा. तो अगर Br जाएगा तो हमारे पास बनेगी एक कार्बोकेटाइन. तो कार्बोकेटाइन में कार्बन पे चार्ज आ गया पॉजिटिव. उसके बाद इथेनॉल लग जाएगा इसके ऊपर. तो जैसे ही इथेनॉल लगेगा हमारे पास ये प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 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 OH C2H5. तो इसमें आगे क्या रहेगा हमारे पास? इसमें ऑक्सीजन H पॉजिटिव है, तो यहाँ से H पॉजिटिव लॉस हो जाएगा. S पॉजिटिव के लॉस होने के बाद हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा OC2H5, राइट. तो ये हमारा प्रोडक्ट A हो गया. सो दिस इज A, दिस इज B. So moving on to the next question. 2-phenyl 2-chloropropane on treatment with alcoholic KOH gives. Again option पढ़ने से पहले alcoholic KOH, that means it is a base and this base will promote elimination. So elimination means हमारे पास चाहिए एक alkene. तो इसमें अगर हम ऑप्शन पढ़ें तो दो ऑप्शंस पहले ही चले गए. तो सिर्फ हमें चूज़ करना है आइदर A और B. तो इसमें अगर हम देखें तो ये हमने स्ट्रक्चर बना लिया 2-phenyl 2-chloropropane. अगर हमने इसमें बेस डाला तो बेस से क्या होगा? एलिमिनेशन. सो एलिमिनेशन कहाँ से होगी?
एक क्लोरीन जाएगा और यहाँ से एक हाइड्रोजन जाएगा, तो हमारा जो प्रोडक्ट बना वो ये बन गया C डबल बॉन्ड CH2 और CH3। तो अगर हम लोग इसे नेम दें तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इसमें फिनाइल रिंग कौन सी पोजीशन पे है? नंबर 2 पोजीशन पे। सो दैट मीन्स ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी कैंसल आउट हो गया। सो moving on to the next question, number 24. The product of reaction of alcoholic silver nitrite with ethyl bromide. So इसमें क्या रहता है? नाइट्राइट। सो ये एक सीधा सीधा ऑप्शन है हमारे पास। इथाइल ब्रोमाइड से जब रिएक्शन होगी सिल्वर नाइट्राइड की, तो इसमें हम लोग इजीली ट्रिक क्वेश्चन में फंस सकते हैं कि इसमें से क्या बनेगा? नाइट्राइट बन जाएगा। तो एक्चुअल में नाइट्राइट नहीं बनता, एक्चुअल में हमारे पास बनता है नाइट्रोइथेन। सो दैट मीन्स ऑक्सीजन के थ्रू नहीं अटैच होता, वो अटैच कहाँ से हो रहा है? दैट इज थ्रू द नाइट्रोजन एटम। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। ऑप्शन बी जो बहुत लॉजिकल लगता है लेकिन वो गलत है, तो ओनली ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन, नाइट्रोइथेन इज फॉर्म्ड। तो अगर किसी को ये है कि ये क्यों बना, तो इसके लिए हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस का कंसेप्ट है। हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस, राइट, उसके बेसिस पे हम लोगों ने एक्सप्लेन किया। तो मूविंग फर्दर, क्वेश्चन नंबर 25, द CX बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन, तो ये सबसे इजी क्वेश्चंस में रहेगा। CH3, Cl, Br, फ्लोरीन और आयोडाइड, इसमें सीधा सीधा हमारे पास ऑप्शन है ऑप्शन सी, दैट इज CH3F से हमारे पास सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कार्बन हेलोजन बॉन्ड रहेगा। क्यों? क्योंकि इनका साइज क्या है? सिमिलर साइज है, दोनों ही सिमिलर ऑर्बिटल्स यूज करेंगे अपने बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। जो ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं वो दोनों के सिमिलर साइज के ऑर्बिटल्स है, तो सिमिलर साइज के ऑर्बिटल में बॉन्ड क्या बनेगा? स्ट्रॉन्ग बनेगा। सो मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 26, व्हेन इथाइल आयोडाइड, स्ट्रक्चर साथ ही साथ ड्रॉ कर लो, CH3 CH2I and N propyl iodide, CH3 CH2 CH2 and iodide are allowed to react with sodium metal in ether. सोडियम मेटल इन ईथर, ये हमारी कौन सी रिएक्शन है? वर्ट्स रिएक्शन। The number of alkanes that could be produced is 1, 2, 3, 4. तो इसमें अगर हम लोग क्वेश्चन में जाएं तो हमारे पास बनेगी, क्लियर कट देखो, RX, रिएक्शन क्या रहेगी? RX प्लस 2Na और प्लस बनेगा हमारे पास एक और RX, तो इसमें फाइनल प्रोडक्ट बनेगा R बॉन्ड R, राइट। तो एक तरफ क्या है? 3, एक तरफ है 2, तो इसमें क्या रहेगा? पहले हो सकता है दोनों मॉलिक्यूल इथाइल और इथाइल के यूज हो जाएं, इथाइल आयोडाइड और इथाइल आयोडाइड C2H5, यही दोनों अटैच हो जाएं तो हमारे पास क्या बनेगी? ब्यूटेन बन जाएगी, राइट। दूसरी तरफ क्या हो सकता है? हमारे पास दोनों मॉलिक्यूल इथाइल आयोडाइड के यूज हो जाएं, C3H7, यानी कि दोनों 3-3 कार्बन एटम, तो इसमें हमारे पास बन जाएगा हेक्सेन, राइट। लेकिन अब क्या हो सकता है? एक इथाइल आयोडाइड आ जाए 2 कार्बन वाला, दूसरा क्या आ जाए? प्रोपाइल आयोडाइड, इसमें हमारे पास क्या बन जाएगा? पेंटेन। सो दैट मीन्स हमारे पास 1, 2, 3
3 अलग अलग एल्केन्स बन सकती हैं इस रिएक्शन में। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारा है ऑप्शन सी। मूविंग फर्दर, क्वेश्चन नंबर 27, 1,3-dibromopropane रिएक्ट्स विद मेटेलिक जिंक। तो इसमें अगेन स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो, CH2Br, CH2, CH2Br। तो एक इंटरेस्टिंग बात क्या है, इस रिएक्शन में जिंक ब्रोमाइड बनेगा। तो जैसे ही इसमें जिंक डाला जाएगा तो ये दोनों Br को साथ लेकर जिंक ब्रोमाइड की फॉर्म में निकल जाएगा। जैसे ही ये जिंक ब्रोमाइड की फॉर्म में रहेगा, ये दो कॉर्नर वाले कार्बन एटम्स एक दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगे। तो दैट मीन्स जो एक हमारी ओपन चेन कंपाउंड था वो क्या बन गया, साइकिल बन गया। वो साइकिल कौन सा है, साइक्लोप्रोपेन। तो ये हमारा सिंपल सा सीधा सीधा प्रोडक्ट हो गया ड्यू टू द रिलीज ऑफ जिंक ब्रोमाइड। सो मूविंग फर्दर, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो इसमें सिंपल रहेगा, टॉलीन, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा। तो पैरा वाले में तो डाइपोल मोमेंट होगी 0, राइट, क्योंकि पैरा में क्या रहेगा, दोनों जो क्लोरीन एटम रहेंगे वो एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन एक साइड को खींच रहा है, दूसरा दूसरे साइड को, तो डाइपोल मोमेंट क्या होगी, 0। और उसके बाद अगर हम लोग आ जाए मेटा के ऊपर, सो मेटा में जो पुल रहेगा वो सिग्निफिकेंट पुल रहेगा। लेकिन अगर हम लोग कंपेयर करें ऑर्थो से, ऑर्थो में इलेक्ट्रॉन्स का पुल एक सिमिलर डायरेक्शन में रहेगा। तो ऑर्थो वाले की जो डाइपोल मूवमेंट होगी वो हाईएस्ट डाइपोल मूवमेंट होगी, राइट। सो दैट मीन्स नंबर 3 हमारा आना चाहिए सबसे ज्यादा। सो दैट मीन्स ए तो कैंसिल, ए तो है, तो ऑप्शन सी हमारे पास से निकल गया। तो अगर ऑप्शन सी हमारे पास निकल गया, उसके बाद नंबर 3 के बाद क्या आता है, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। सो नंबर 2, नंबर 3 आ गया, नंबर 3 के बाद नंबर 2 आ गया। तो दैट मीन्स डी तो निकल गया। अब हमारी कंपटीशन रह गया ए और बी में। उसके बाद आ गई टॉलीन, क्योंकि पैरा वाले में तो नहीं है, तो दैट मीन्स नंबर 1 इज दिस, नंबर 4। सो ऑप्शन ए भी अब क्या हो गई, कैंसिल हो गई। सो ओनली करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बची है ऑप्शन बी। टॉलीन का डाइपोल मूवमेंट रहेगा जो हमारा पैरा डाइक्लोरोबेंजीन से थोड़ा सा ज्यादा होगा। सो मूविंग फर्दर, क्वेश्चन नंबर 29, आइडेंटिफाई रिएजेंट्स एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग। सो CH3, ये CH2, CH2Br, प्रोपाइल ब्रोमाइड, एक्स से रिएक्ट किया प्रोडक्ट, उसके बाद वो जो प्रोडक्ट बना वाई से रिएक्ट करके हमारे पास बना 2-ब्रोमोप्रोपेन, राइट। तो इसमें हमारे पास जो ऑप्शन दिए हुए हैं, डिल्यूट एक्वस सॉल्यूशन 20 डिग्री, डिल्यूट एक्वस NaOH 20 डिग्री, डिल्यूट एक्वस NaOH 20 डिग्री, कंसंट्रेटेड। सो कंसंट्रेटेड तो करेगा आपका एलिमिनेशन, तो ऑप्शन डी तो यहीं से निकल गई, राइट। इसमें हीट कर रहा है तो ये एलिमिनेशन करेगा। लेकिन उसके बाद क्या किया गया है, Br2CHCl3, ये भी एलिमिनेशन करेगा, ये भी एलिमिनेशन करेगा। ए में एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं है, तो ए ऑप्शन हम लोग यहीं से कैंसिल कर देते हैं कि ए हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं। सो लेट्स सी क्या होता है इसमें। तो CH3CH2, CH2Br,
ये जब dilute NaOH से रिएक्ट करेगा तो आपके पास बनाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, दैट मीन्स एलिमिनेशन रिएक्शन करके बनाएगा प्रोपीन। सो उस प्रोपीन के बाद हमें चाहिए सेकंड नंबर कार्बन के ऊपर Br लगेगा। सो सेकंड नंबर कार्बन पे Br कैसे लगेगा? Br किस फॉर्म में लगेगा? Br लगेगा नेगेटिव फॉर्म में, राइट? तो नेगेटिव फॉर्म में सेकंड के ऊपर कब लगेगा? जब सेकंड कार्बन के ऊपर चार्ज कौन सा हो? पॉजिटिव चार्ज, राइट? तो पॉजिटिव चार्ज तभी लगेगा जब हमारे पास ये रहेगा HBr और एसिटिक एसिड। दैट मीन्स कौन सी रिएक्शन होगी? प्रोटोनेशन होगी हमारे पास इस तरह से, राइट? तो ऐसे रिएक्ट करके ये बनेगा हमारे पास सेकेंडरी, और ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन के साथ Br रिएक्ट करके हमारा देगा प्रोडक्ट। दैट मीन्स B और C में से X तो दोनों का सही है, लेकिन C में अब ये जो B दिया हुआ है ये गलत है, तो ओनली ऑप्शन B हमारे पास रह जाता है जिसके दोनों ही ऑप्शंस करेक्ट हैं। सो इसमें करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी। So the intermediate during the addition of HCl to propene in the presence of peroxide. So in the presence of peroxide, propene में addition करनी है in the presence of peroxide. So again इसमें हम लोग confuse हो सकते हैं कि अगर हम लोग पेरोक्साइड देखते हैं तो पेरोक्साइड देखते ही हम लोग बोल देते हैं कि इस रिएक्शन में रेडिकल फॉर्मेशन होगी, राइट? लेकिन वो रेडिकल फॉर्मेशन रहती है इन ओनली केस ऑफ HBr। तो इसमें क्या बनेगा? हमारी जो प्रोपीन रहेगी वो पहले रिएक्ट करेगी H पॉजिटिव से। तो अगर H पॉजिटिव से रिएक्ट करेगी तो हमारे पास क्या बनेगी? कार्बोकेटाइन, राइट? तो कार्बोकेटाइन दो बन सकती है हमारी, एक ये जो सेकेंडरी है, दूसरी बनेगी प्राइमरी। लेकिन इन दोनों में से स्टेबल कौन सी है? ऑब्वियसली ये जो सेकेंडरी है स्टेबल। तो रिएक्शन कौन सी कार्बोकेटाइन के थ्रू जाएगी? जो ज़्यादा स्टेबल है, दैट मीन्स सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। दैट मीन्स ये जो A और D तो वैसे ही कैंसिल हो गए क्योंकि रेडिकल नहीं है। रेडिकल में बाद B और C में से स्टेबल कौन है? B है। सो रिएक्शन जाएगी B के थ्रू। दैट मीन्स करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन P। इसमें हम लोग इजीली गलती कर सकते हैं कि पेरोक्साइड को देखकर रेडिकल लगा दें, लेकिन वो जाएगा इन ओनली इन केस ऑफ HBr। So moving further, question number 31, butane nitrile can be prepared by heating. So सबसे पहले जो मेंशन किया है उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। CH3 CH2 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 CN, ये बनेगा ब्यूटेन नाइट्राइल। तो हमें चाहिए क्या? CN कब लगेगा? CN लगेगा अगर इसकी जगह पे कोई पहले लगा हो लीविंग ग्रुप, राइट? तो X चाहिए। सो अब हम लोग ये ढूंढ रहे हैं अपनी चारों ऑप्शन में से। प्रोपाइल अल्कोहल, प्रोपाइल में तो कार्बन ही 3 है, ये कैंसिल हो गया, ये नहीं चाहिए। ब्यूटाइल अल्कोहल विद KCN, इसमें 4 कार्बन है, ये पास हो गया। इसमें भी 4 कार्बन है, ये ऑप्शन है। ऑप्शन डी नहीं है, 3 कार्बन है। सो हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, ब्यूटाइल अल्कोहल और ब्यूटाइल क्लोराइड। अल्कोहल में X है OH और क्लोराइड में ऑप्शन है Cl X। सो इसमें Cl इज ए गुड लिविंग ग्रुप, राइट? तो यही हमारा एक
आइडियल कैंडिडेट रहेगा. सो दैट मीन्स OH we cancel, only viable option is option C. So moving further, the reaction of CH3CH double bond CH with HBr. Again focus सिर्फ कहाँ पे करना है हमें,